The calculation of the formula future value is equal to present value in bracket 1 plus I upon n bracket close n into n. What are this m and n? I'll explain you with the sum. Just write down this. I'll explain you the sum. Only write down this and explain you the whole sum with the help of the question. Once this is done, we'll check out the question. We need to calculate future value. We'll take subpoint A first. We need to calculate future value, which is equal to present value. Check the question what you are investing now. You are investing 1000 rupees now. So your present value will be 1000. Open the bracket. 1 will be 1. Now check out the interest rate given in the question. It is 5%. We never write 5% over here. We'll write 5 divided by 100. That is 0.05. Because it is in percentage terms. So we'll be writing it as 0.05. So I will be 0.05. Clear? Now coming to your M and N. What are this M and N? Here your M means you are calculating at the end of the year. So it will be 1. You are calculating at the end of the year, it will be 1. In case you are calculating for 6 months, this will be 2. If you are calculating for quarterly, this will be 4. I will explain you 2 sums related to quarterly as well as your semi-annually compounding. This is for a year, so we will be writing 1 over here. Be very much clear to it. We will write only 1 over here. This is at the end of the year. For the end of the year, for annual compounding, we write only 1. So your M is 1. Everywhere it will be 1 only whenever we are doing annual compounding. So M into N. So M is 1. And N is your number of years given in the question. N given in the question is 2. 1 into 2. I am repeating it again. When you are doing your annual compounding part, your M will be 1. N is your number of years. That is 2. Next subpoint is 3 years. So here only N will be changed. It will be 3. This is the basic solution. Just note down this. I'll tell you how to calculate this on calculators as well as from the logbook. ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है. हाँ, क्योंकि हमारा रेट जो है परसेंटेज में दिया, एन नहीं है वो आई है. 5% है. 5% को हम लोग 5/100 करके लिखते हैं. दैट इज 0.05. ठीक है. हाँ, अब आगे सॉल्यूशन करते हैं. दिस 1000 विल बी 1000. लेकिन इसे कैसे सॉल्व करते हैं? टेक योर कैलसीज. ये लॉगबुक में भी मैं बताऊंगी कैसे होता है, लेकिन कैलसी से भी आना चाहिए इन केस आपके पास लॉगबुक नहीं है. टेक योर कैलसीज. ये तो बेसिक मैथ्स है. यहाँ पे 1 into 1 करते हैं तो 1 into 1 is 1. दिस 1 into 1 is 1 plus 0.05. So take your calcies, do the calculation. 1 plus 0.05. अब आगे कुछ मत करना. अब मल्टीप्लाई का साइन दबाओ. मल्टीप्लाई. अब 1 दबाओ. ठीक है. 1 प्लस 0.05. 1.05 तक आपका आ गया. 1.05 आ गया. अब कोई भी साइंस मत दबाना कैलसीज में. मल्टीप्लाई का साइन दबाओ. मल्टीप्लाई. 1 दबाओ. इक्वल टू एक बार प्रेस करो. एक और बार इक्वल टू प्रेस करो. फिगर आई 1.1025. फिगर आ गई. नहीं 1.1025. हाँ मिराज, मैं वापस से रिपीट करूँ. जैसे मैं बोलूँ वैसे ही कैलसी यूज़ करना.
1 प्लस 0.05 इक्वल टू इंटू 1 इक्वल टू वापस से इक्वल टू यूल गेट 1.1025। आया मिराज? ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन है, ये तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। एक सेकेंड, ये ओके 1 प्लस 0.05, अरे फालतू कमेंट्स नहीं, 1 प्लस 0.05 ठीक है इक्वल टू आया 1.05 इंटू 1.05, एक बार इक्वल टू, दो बार इक्वल टू, दूसरी बार करने पे 1। हाँ, अब ये हमने दो बार इक्वल टू क्यों किया? इंटू 1 करना तो मैं तुम्हें लॉगबुक यूज़ करे बिना ये कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ, वो तो करना ही होगा, वो दिमाग में डाल दो। लेकिन दो बार इक्वल टू इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए पूछा, 3 ईयर्स के लिए होगा तो 3 बार इक्वल टू करेंगे, 10 बार पूछा, 10 साल के लिए पूछा होगा तो 10 बार इक्वल टू करेंगे। समझ आई? ये तुम्हारा आंसर आ गया, यहाँ पे ये पूरे का सॉल्यूशन आ गया तुम्हारे पास, ये पूरा आ गया, तो दैट इज 1.1025। आपके पास पूरा सॉल्यूशन आ गया 1.1025 इंटू 1000, सो 11 आंसर विल बी 1102.50। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब ये अमाउंट लॉगबुक में कैसे देखते हैं वो बताती हूँ। लॉगबुक निकालो जो मैंने भेजी थी ग्रुप में, फ़ोन में हो तो फ़ोन में, हाँ ये यहाँ पे यूज़ हो गया ना, इक्वल टू हमने 2 बार प्रेस किया था, इक्वल टू हमने 2 बार प्रेस किया था, वो 2 साल के लिए था, 1 इंटू 2 ईयर्स हो गया। ठीक है, अब हाँ लॉगबुक जो मैंने कल भेजी थी वो दिखनी है, वो लॉगबुक चेक करो, उसमें ऊपर हेडिंग होगी प्रेजेंट वैल्यू करके कुछ हेडिंग होगी, टेबल नंबर A1, टेबल A1, मेरे पास लॉगबुक नहीं, आपके पास है, आप देखो टेबल A1 है, उसमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ 5%, ऊपर देखो 5% लिखा होगा, ऊपर मैं 1 2 3 4 5 ऐसे परसेंटेज लिखे होंगे पूरे, लिखे हुए ऊपर वाली साइड पे 1%, 2%, 3%, 5% वाली जगह पे आ जाओ, 5% वाले में आ गए। अब चेक करो 5% में सेकेंड ईयर का वैल्यू क्या है, 5% में सेकेंड ईयर, ये हमने जो कैलकुलेट किया वही है, तुम 3 डेसिमल तक लो, 2 डेसिमल तक लो, मैक्सिमम 3 तक ले लो, आ गया आंसर। अभी भी वापस से लॉगबुक कैसे देखते हैं वो बता रही हूँ। 5% वाली जगह पे चले जाओ, 5% वाला कॉलम देखो, हेडिंग देखो 5%, ठीक है, लेफ्ट साइड पे तुम्हारे ईयर्स ही है 1 2 3 4, तो सेकेंड ईयर में 5% की वैल्यू देखो, सेकेंड ईयर में 5% की वैल्यू देखो, हाँ एग्जैक्टली दैट इज ओनली द आंसर। डायरेक्ट अगर लॉगबुक मिलती है एग्जाम में, नहीं मिले तो मांग लेंगे, वहाँ से देख के डायरेक्ट भी कर सकते हो। समझ आ गया? नहीं, ये 1000 से वेरी होगी तो सेम नहीं आएगा, इनके साथ 2000 है तो 2000 इंटू 1.1025। इसका लॉगबुक से कोई लेना देना नहीं है, हाँ सिर्फ ब्रैकेट की वैल्यू लॉगबुक से ले, हाँ कि तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम प्रेजेंट वैल्यू कितना इन्वेस्ट करें, ये क्लियर हुआ? विल मूव ऑन टू सब पॉइंट बी, इसमें किसी को कोई डाउट? विल मूव ऑन टू सब पॉइंट बी, सेम ही है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 2 की जगह 3 हो जाए, इस 2 की जगह 3 हो जाएगा। चलो एक बार खुद से ट्राई करो, देन आई सॉल्व। कैलसी पे ट्राई करना पहले, फिर लॉगबुक में चेक करना तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। ट्राई इट प्लीज, 2 मिनट। क्या आया आंसर? परफेक्ट।
ये सब तुमने कैसे कैलसी पे कैलकुलेट किया ना, वो भी देखते रहना, वरना भूल जाओगे क्या किया था कैलकुलेटर पे। ये खाली सीए स्टूडेंट्स को ही पता होता है, ये ट्रिक किसी को पता नहीं होता। सब लोग सिर्फ लॉगबुक का यूज़ करते हैं। 1.157 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे दी, 1000 भी है ना, उससे मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू, तो आंसर आएगा 1157.63। ये रुपीज़ में आती है वैल्यू। टू डेसिमल प्लेसेस सेम है ना, 1157 समथिंग 0.63 या 62। लॉगबुक में हमें दिया हुआ है 1.158, नियर अबाउट ही है, नियर अबाउट ही है। मैं वापस से सॉल्यूशन करके बता रही हूँ। 1000, हाँ सही है 1000। अगर लॉगबुक से देखो तो 1.158, दैट इज़ 1158, ये रुपीज़ में आती है वैल्यू। और इन केस आप इसे सॉल्व करोगे तो एक बार वापस से बता रही, किसी को नहीं आया हो, 1 + 0.05 इक्वल टू इंटू 1 टाइम इक्वल टू सेकेंड टाइम थर्ड टाइम 1.1, और 1000 इंटू 1.157, दैट इज़ 1157.62। ये 3 बार, जितनी ईयर्स हो उतनी बार इक्वल टू, 10 ईयर्स हो तो 10 बार इक्वल टू। ठीक है, इससे तुम्हारा आंसर भी समझ आ जाएगा तुम करेक्ट कर रहे हो कि नहीं। अगर टाइम हो तो ही करना, टाइम नहीं हो तो डायरेक्टली लॉगबुक से लेके, हाँ लॉगबुक 158 है शायद तक, 8 है, ध्यान से देखो। ओके नेक्स्ट, ये एनुअल कंपाउंडिंग के लिए था। विल डू नेक्स्ट सम ऑन सेमी एनुअल। आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन, राइट डाउन दिस क्वेश्चन। सेमी एनुअली मतलब हाफ के लिए कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स पता करोगे, क्वेश्चन ध्यान से रीड करना। व्हेन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन समटाइम्स इट विल बी मेंशन बट समटाइम्स इट विल नॉट बी मेंशन दैट यू नीड टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हो तो हम लोग फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल अमाउंट कैलकुलेट करना है, सो विल बी कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू। अभी तो विद द फ्लो फ्यूचर वैल्यू करें तो कोई कन्फ्यूजन्स नहीं आएंगे। प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो एक बार वापस से समझा दूँगा। कमिंग टू दी सेम थिंग अगेन, उसकी क्वेश्चन चेक करो। 1000 रुपीज़ उसकी सेविंग है, मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसके पास 1000 रुपीज़ है। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में कितना दिया है, 6% दिया है, सो विल राइट 0.06। नेक्स्ट एम क्या होगा इसमें, हमको क्वेश्चन में बोला है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली एक साल में 2 बार, दिस विल बी 2। जब भी ईयरली हो तो 1 साल, सेमी एनुअली हो तो 2, क्वार्टरली हो तो 4। ये 3 टाइप्स के समान है। ये 2 हो गया, वापस से एम यहाँ पे 2 होगा। ईयर कितने हैं इसमें, अगेन 2, नंबर ऑफ ईयर्स आर 2।
अब इसे सॉल्व करो। कैसे करोगे? पहले तो क्वेश्चन में जब एनुअली हर साल के एंड पे दिया हो ना तो हमेशा M1 रहेगा। क्वेश्चन में जब सेमी एनुअली बोला हो तो M हमेशा 2 होगा। सेमी एनुअली मतलब 6 महीने का गैप, एक साल में 2 बार होता है तो 2 होगा, और क्वार्टरली दिया हो तो 4 होगा। ठीक है, 3 महीने का गैप 4 बार होता है तो क्वार्टरली तो 4। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे। ये 1000 हो गया, इसको डिवाइड करके लिख दो। 0.03 हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। 0.06 को 2 से, हाँ 1 सेकेंड होगा। 0.03 हुआ, 2 × 2 4। अब वापस से कैलसी ले लो। 1 + 0.03 इक्वल टू इंटू 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। कितना आया इसकी वैल्यू? इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई है? नहीं, ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है? परफेक्ट, 1.1255। सो 1000 into 1.1255. Your answer will be 1125.51, near about this figure. ब्रैकेट समझाओ मिराज। पहले ब्रैकेट, टेक योर कैलसी इन योर हैंड। 1 + 0.03 डन इक्वल टू 1.03 आया इंटू 1, ठीक है, इक्वल टू प्रेस 4 टाइम्स, 1 2 3 4, you will get the answer 1.12550 something. Got it? Now you can check these values in your logbook also. 3% का चेक करो for 4 years. 3% for 4 years. 3% क्यों देखा? क्योंकि यहाँ से डिवाइड करके अब हमारे पास 3% की वैल्यू बची थी, इसलिए 3% for 4 years. आ गया आंसर? ये रुपीज़ है। आया आंसर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनी डाउट टिल हियर?